Hello everyone, myself Rajiv Shukla, and I hope you all are fit and fine, and you are taking care of yourself as well as your families also. So, today we will discuss the topic of geography, that is the chapter number 2, the origin and the evolution of Earth. So, in this chapter, we will discuss about some of the theories related to the origin and the evolution of the Earth. So, for the better understanding, we can divide these theories into two groups. The first one is early theories, and the second one is modern theories. So, early theories, which was not pure as the today's the theories are, and they are not based on such a scientific background. So, what these theories are and who are the persons who involved in these theories, let us consider. So person the first person who has given their contribution in this field, that one was that okay and the German philosopher, that Immanuel Kant. Okay, the theory which was proposed by the German philosopher Immanuel Kant was based on the nebula hypothesis. You can just read it here. Okay, actually, that the theory which was revealed by that Immanuel Kant was not refined as today's theory. So later on in 1796, the mathematician named Laplace has revised that theory and presented that it again. So that hypothesis was known as nebula hypothesis. अभी यहाँ पे nebula जो एक वर्ड आया है कि that nebula hypothesis, तो ये nebula hypothesis क्या था कि ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि डस्ट का एक क्लाउड की एक hypothesis थी कि एक लार्ज स्केल का आपका डस्ट की क्लाउड था, उसको इन्होंने नेबुला कहा है कि उसके आगे चल के सारी गैलेक्सीज़ को मिला के अभी हमारा नेबुला बनता है। तो एक तरीके का क्या था कि उस चीज़ पे इनकी एक हाइपोथेसिस बेस्ड थी कि एक डस्ट का क्लाउड से ही हमारे इस यूनिवर्स का और जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं उनकी सबकी फॉर्मेशन हुई है। तो इस तरीके से फिर इसी थ्योरीज़ को इन सभी थ्योरीज़ को आगे चल के इन in later 90s, the Chamberlain and Mountain considered that wandering star approach to sun. As a result, cigar-shaped extension of material was separated from the sun's surface. Okay. एक्चुअली इसके बाद जब इमानुएल कंट और जो ये नेबुला हाइपोथेसिस थी जो इसको लाप्लास ने भी रिफाइन किया था, उन्होंने इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन अपनी थ्योरीज़ में नहीं दिया था कि किस तरीके से सोलर सिस्टम का इवॉल्वेशन हुआ है. So, what we have to understand is that in later 90s चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ने एक तरीके की थ्योरी वहाँ पे दी थी कि किस तरीके से सोलर सिस्टम जो हमारे बने हुए हैं वो इवॉल्व हुए हैं. और एक्चुअली यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, दिस इज दैट द शिगार शेप्ड एक्सटेंशन. तो अभी ये शिगार शेप्ड एक्सटेंशन क्या है, इस चीज़ को समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अभी था कि अगर इसको हम सन मान लेते हैं और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा सन यहाँ पे एग्जिस्ट करता था पहले से ही, और उसके बाद एक कोई भी अदर स्टार इससे आके कोलैप्स हुआ और इसकी जिसकी वजह से हमारा जितना भी ये मटेरियल है, यानी कि सन का ही मटेरियल आगे चल के हमारा इस यहाँ से सेपरेट हुआ और एक इस तरीके से आपका काफ़ी डस्टी क्लाउड यहाँ पे ऐसे बन गया. और इसी से ही हमारा क्या हुआ कि आगे चल के जो जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो आगे चल के फॉर्म हुए. तो ये थ्योरी थी इनकी, आपकी 19 चैम्बरलिन और मॉल्टन ने ये थ्योरी यहाँ पे दी थी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, so later on that Sir James Jeans and later Sir Harold Jeffrey supported this argument. तो उन्होंने भी इस चीज़ को आर्गूमेंट को सपोर्ट किया. और फिर लेटर ऑन दीज आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज. मतलब इन थ्योरीज़ को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ, इन थ्योरीज़ में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी किए गए लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें अपने आर्गूमेंट्स को
उसमें ऐड ऑन किया और इसी थ्योरीज को बोलते थे बाइनरी थ्योरी। तो in 1950 that Otto Schmidt in Russia and Karl Weizsäcker in Germany that somewhat revised the nebula hypothesis through differing in details. So उसी nebula hypothesis जो कि हमारे that अभी wait a minute. Okay, that Immanuel Kant, yeah, this word, that ये nebula hypothesis, this was proposed by Immanuel Kant. So this theory was proposed by Immanuel Kant and redefined by various kind of persons, as you can see that Otto Schmidt in Russia and Karl Weizsäcker in Germany. इन लोगों ने भी क्या किया उस थ्योरी को, let us highlight this portion also. Okay, in Germany and that Otto Schmidt in Russia. ओके सो उन लोगों ने भी इस थ्योरी को काफ़ी रिवाइज़ किया और इस चीज़ को उन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस को काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ भी किया. So later on, they considered that the sun was surrounded by the solar nebula containing mostly hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. ओके सो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो सन है, ठीक है, हमारे सन के चारों ओर, हमारे सन के चारों तरफ डस्टी जो क्लाउड्स थी, ठीक है, वो डस्टी क्लाउड एक्चुअली मेड अप ऑफ दैट वाज एक्चुअली मेड अप of helium and nitrogen. Okay, so this was made up of helium as well as hydrogen. Okay, so उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो जिसकी क्लाउड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जितना भी क्लाउड था, ये हमारा फॉर्म कर उस किस चीज़ के से फॉर्म हुआ था, ये हीलियम और हाइड्रोजन से ही की वजह से बना हुआ था. अभी क्या हुआ कि ये जो इसका सोलर रेडिएशन निकल रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारी ये सोलर डस्ट है, ये आपस में कोलाइड करने लगती है. ठीक है, ये आपस में कोलाइड करने लगती है और जगह जगह पे अपने सेंटर पे ये कोहेजन फोर्स के ज़रिए आपस में मिलने लगती हैं और इन्हीं से आगे चल के बड़े प्लैनेट्स का इवोल्यूशन होता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द थ्योरी रिलेटेड टू दिस. So we have we got the understanding about this theory that कि अभी हम लोगों का ये जो डिस्क शेप का वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वो किस तरीके से हमारा एक डिस्क शेप का आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरीके का क्लाउड हमारा जो फॉर्म होता है, उसकी वजह से हमारे आगे चल के जितने भी हमारे प्लैनेट्स इवॉल्व हुए, ठीक है, जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं और 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स हैं. तो जो हमारा मिडिल पोर्शन है, जो हमारा जुपिटर वगैरह हैं, जितने भी जो आपके बड़े प्लैनेट्स हैं वो हमारे बीच में हैं और जितने छोटे प्लैनेट्स हैं वो हमारे साइड में हैं. तो इस वजह से इसके पीछे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो इन थ्योरीज से हमें पता चलता है. ओके, so let us discuss about the modern theories. Okay, so what about the modern theories? That the most popular argument regarding the origin of the universe is Big Bang theory. This point is important, so just underline this. Okay, that Big Bang theory. Okay, this actually that the person whose the name of that person was Edwin Hubble in 1920 provided the evidence that the universe is expanding. Okay, so what does it means? Actually, that Edwin Hubble in 1920 has observed that the galaxies which are present in the universe are just going far from each other. So on the basis of that evidence, they claimed that this universe is expanding day by day. So on the basis of that, the Big Bang theory is based on this particular hypothesis also. Okay,
So as time passes, galaxies move further and further apart. You can experiment and find what does the expanding universe mean. Take a balloon and so this one is an activity you can do at your home also. That how our universe is expanding. So just take a balloon, and you can just mark the 2 points over here. Okay, this point and this point. If you just blow air inside it, so this balloon will inflate, and these mark will go far from each other. Okay, so on the basis of this you can understand that how the universe is expanding and how these galaxies are going far from each other. So on the next page we can find this diagram. Okay, on the next page we can find this diagram showing the Big Bang. Actually, what does this Big Bang means? Okay, actually the word, with the help of this word you can understand that Big Bang is a kind of that big explosion. Simply it literally mean that Big Bang is as a word denote that big explosion in the universe. Okay, so in this picture you can see that word, that singularity, from singularity to moving towards this direction. So you can just assume that this point is a kind of that explosion, and the day by day the galaxies inside this universe are expanding and they are going far from each other. Okay, so they are going far from each other. So this is just a basis of that Big Bang theory. Okay, so let us understand that Big Bang theory considered the following stages in the development of universe. So we will now read that step by step what has gone inside the Big Bang theory, and how this universe has created. So we will understand by this one. Okay, in the beginning all the matter forming the universe existed in one place in the form of tiny ball with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. So what we understand with this para and with this point also, that जो उनकी हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि जितना भी हमारा यूनिवर्स आज के टाइम पे, जितना भी आज हमारा यूनिवर्स है, वो एक टाइम पे यानी कि आज से बिलियंस मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि हमारा सारा यूनिवर्स केवल एक टाइनी बॉल या टाइनी प्लैनेट की तरह आप समझ सकते हैं, उस तरीके से हमारा था। फिर क्या हुआ कि जब एक स्टार की तरीके से था, फिर वो उसने क्या किया, उसका जब सारा रेडिएशन और सारा उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी में, लेटर ऑन हम उस अभी पॉइंट्स में पढ़ेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि लेटर ऑन जो हमारा ये टाइनी बॉल था वो हमारा क्या हुआ कि अपने आप में ही, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से, ओके जस्ट यूज़ दिस पेंस, ओके, ये हमारा जितना भी है, जो हमारा प्लैनेट था वो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाने के बाद जो इसकी अपनी ही कोर में, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ये अपने आप में ही क्रश हुआ। ठीक है, और एक लिमिट तक क्रश होने के बाद उसमें क्या हुआ कि जब उसमें और ज़्यादा स्पेस नहीं रह गया, जितना भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, जितना वो हो सकता था उतना वो हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके एक लिमिट के आगे वो नहीं जा सकता था, यानी कि एक वो छोटा सा आपका स्मॉल डॉट हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, कि जो एक लिमिट के अप्रॉक्स जब उसमें स्पेस नहीं रह गया, तब उसमें एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, तो अभी ये हमारा एक्सप्लोजन कब हुआ, वेट अ मिनट, okay, as you can understand that at the Big Bang the tiny ball exploded violently. This led a huge explosion
It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा बिग बैंग का एक्सप्लोजन होता है, ये इसका टाइमिंग क्या रहती है, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये हमारा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि देयर वाज अ पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन। अभी क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अभी आप अगर समझते हैं कि अगर छोटा सा कोई काफ़ी एक बड़ा एक्सप्लोजन कोई होता है, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, यानी कि एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, वो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर मैटर है, जितना भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मूव करेंगे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, यानी कि शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। बट लेटर ऑन क्या होगा कि वो उनकी जो स्पीड है दूर जाने की, वो धीमे हो जाएगी। तो क्या था कि एज यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, as you can understand here that within a first that thereafter there was a particularly rapid expansion within the fraction of second after the Big Bang, and thereafter the expansion has slowed down within the first 3 minutes of the from the Big Bang event. The first atom began to form, यानी कि इस एक्सप्लोजन के आपके 3 मिनट्स के बाद ही जो हमारा फर्स्ट एटम का फॉर्म होता है, यानी कि इससे पहले एटम की भी प्रेजेंस नहीं थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो था, इतने, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बीच में भी ये गैपिंग होती है। ठीक है, बट जब सिंगुलैरिटी की यहाँ पे बात आती है, जब सिंगुलैरिटी की बात आती है, जब हमारा एक्सप्लोजन से पहले की बात, कि वो पूरा जो एक स्टार था वो अपने अंदर ही कोलाइड हो गया था, तो वो जो गैप मेंटेन रखना था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच के भी गैप का, वो भी वहाँ पे नहीं रह गया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे अभी एटम्स की भी प्रेजेंस नहीं थी। तो उसके बाद क्या होता है कि विद इन 3 मिनट्स, यानी कि अब जब वो एक्सपैंड होता है, वो यानी कि रिलैक्स स्टेट में आता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे 3 मिनट्स के अंदर ही हमारा पहला जो एटम है वो फॉर्म होना शुरू होता है। ओके, दैट ओके within 3 lakhs of year from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin. ओके, अब क्या होता है कि बिग बैंग होने के 3 लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, क्योंकि धीरे धीरे से नॉर्मल सा है कि धीरे धीरे से उसका टेम्परेचर घटेगा, तो 4500 टेम्परेचर आता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। ओके, एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकम द ट्रांसपेरेंट। अभी क्या होता है कि वो जितना भी आपका है, उसका स्टेट चेंज होता है, जिसका भी मैटर उसके अंदर का है, उसका स्टेट चेंज होता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, नाउ द एक्सपेंशन ओके now the expansion of universe means increasing in space between the galaxies. An alternative to this was that Hall's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence become available about the expanding universe, specific humanity at the present favor argument of expanding universe. So all these kind of theories are proving that this kind of things happens at that time. अभी यहाँ पे एक वर्ड हमने पढ़ा कि दैट होल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट, दैट होल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट। तो अभी इसका क्या मतलब है कि अभी आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो कंसीडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये मतलब आता है इसका कि जो स्टेट, जो यानी कि जो 4500 केल्विन पे जो हमारी स्टेज आई थी 3 लाख ईयर्स के बाद में, तो उस समय क्या था कि सारा का सारा मैटर एक ही था।
तो यानी कि यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि यूनिवर्स जो हमारा उस समय था वो पूरा का पूरा एक ही स्टेट ऑफ मैटर में था। ओके, यानी कि जिस तरीके से आज है कि कुछ स्टार्स हैं, कुछ प्लैनेट हैं, किसी पे मेथेन है, मतलब इस तरीके का नहीं था, वो सारा का सारा मैटर एक ही था। और उस समय क्या था कि वो ट्रांसपेरेंट मैटर था, और हमारा उस समय यूनिवर्स भी एक्सपेंडिंग दैट एक्सपैंड कर रहा था। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस the theory related to the star formation. The distribution of matter and energy was not even in the early universe. These initial density difference gave rise to the difference in gravitational forces, and it caused the matter to get drawn together. अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। अभी क्या हुआ कि जितना भी हमारा मैटर वहाँ से एक्सपैंड हुआ, जितना भी मैटर हमारा एक्सप्लोड होके बाहर आया, वो उस मैटर की डेंसिटी और जो भी मैटर का एलोकेशन था वो हमारा इवन यानी कि एक जैसा नहीं था। ठीक है, यानी कि कहीं पे मैटर ज़्यादा था, कहीं पे मैटर कम था, यानी कि कहीं पे वो जो यूनिवर्स का मैटर था वो कम था, कहीं पे ज़्यादा था। तो इस वजह से इसी चीज़ ने आगे इस चीज़ को बढ़ाया कि हमें जो यानी कि अगर हमारे छोटे छोटे से क्लस्टर्स आप समझ लेते हैं कि अगर छोटे छोटे से क्लस्टर्स यहाँ पे हैं तो ये आपस में कोलाइड होके यानी कि आपस में अपनी ही कोहेसन फोर्स के द्वारा ये आपस में क्या होंगे कि बड़े बड़े से प्लैनेट्स को बनाना शुरू करेंगे। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिलके एक प्लैनेट की शेप को देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्लैनेट्स के फॉर्म होना शुरू हुआ। वेट अ मिनट। ओके, so a galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distance that are measured in thousands of light year. ओके, सो अभी देखेंगे कि जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं, अभी गैलेक्सीज़ क्या होती हैं कि गैलेक्सीज़ कई सारे सोलर सिस्टम्स, यानी जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत बड़े से सोलर सिस्टम्स, उनको मिला के हमारी गैलेक्सीज़ बनती हैं। तो जो गैलेक्सीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही वास्ट इन नेचर, यानी कि वास्ट इन साइज़ होती हैं। तो इनका जो डायमीटर है, वो डायमीटर है या इनकी डिस्टेंस है, वो हमेशा किस चीज़ में नापी जाती है, यानी कि किस चीज़ में हम लोग मेज़र करते हैं, वो हम लोग मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स में। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम यू कैन अंडरस्टैंड दैट 18,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। ओके, अभी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक लाइट ईयर क्या होता है कि अगर हम जो हमारी लाइट है वो एक सेकेंड में, जो हमारी लाइट है वो एक सेकेंड में अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, एक सेकेंड में, इन पर सेकेंड। अभी क्या है कि जितनी भी ये हमारी जो लाइट है, अगर एक लाइट की रे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, और वो एक साल में जितना भी ट्रेवल करेगी वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है 1 लाइट ईयर। एज यू कैन रीड इट हेयर ऑल्सो। ओके, एज यू कैन रीड इट हेयर। ओके, सो क्या हुआ कि ये क्या हुआ, अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। अभी क्या हुआ कि वही जो नेबुला हाइपोथेसिस थी कि एक जो डस्टी क्लाउड था हाइड्रोजन गैस का, उसी की वजह से हमारी नेबुलाज बनना स्टार्ट हुई। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। इससे क्या हुआ कि लोकलाइज जो गैसेस के छोटे छोटे पोर्शंस, यानी कि छोटे क्या मतलब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े छोटे मतलब उस समय के गैसेस के क्लाउड्स बनना स्टार्ट हुए। उन्हीं क्लाउड से ही हमारे जो स्टार्स का फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन भी उन्हीं से आगे चल के हुआ। ओके, अब these clumps continue to grow into even denser gaseous body
giving rise to formation of stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. अभी 5 to 6 billion years ago जितने भी हमारे stars हैं इनका formation होता है. Okay, now the second point is that formation of planet, as we have discussed earlier also, that the formation of planet was done due to those dusty clouds and clouds made up of hydrogen and all, and the self gravity of that dusky cloud. So क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोजन के क्लाउड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स थे, वो आपस में कोलाइड होना शुरू होते हैं खुद की ग्रेविटी से, कोहिजन की वजह से वो आपस में कोलाइड होना शुरू होते हैं और आगे चल के प्लैनेट्स को फॉर्म करते हैं. तो अभी देखेंगे पॉइंट वाइज यहाँ पे क्या है कि द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला. अभी एक नेबुला में क्या होता है कि छोटे छोटे लोकलाइज यानी कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी पूरी नेबुला है, तो एक छोटे छोटे से एरिया में अलग अलग ये लोग अलग अलग गैसियस क्लाउड को फॉर्म करना शुरू करते हैं. ठीक है, और फिर यही क्लाउड्स, छोटे जो लोकलाइज क्लाउड्स हैं, वो आपस में कोलाइड होके छोटे आपके प्लैनेट्स को बनाना शुरू करते हैं. इन्हीं की वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे बनना शुरू होते हैं. ओके, डेवलप्स अराउंड द गैस कोर.